Good morning, dear students. Hope you all are fine. Today, in this video, we will discuss the third chapter from our first term syllabus. So, the third chapter is chapter number 6, which is mentioned on the page number 47, and the name of the chapter is Different Types of Houses. In this chapter, we will read about the different types of houses. So, let us start with the fun time. Look at the pictures of different rooms in a house, rearrange the letters to form the right words and write them in the space given below. So here are the pictures of different rooms are given and we have to identify their names. Okay, to help us there are hints are given. So we have to just rearrange the letters to write the correct name. Okay, so let us start with the first picture. So in this picture, sofa, television, all these things are shown. So it is a picture of living room. So this is the picture of living room. Living room is a room where we spent most of our times. So we have to rearrange these words. Firstly, we will write living, living, room, room. So second image is this. In this picture we can easily see the bed. So the room which have bed is called bedroom. So we have to rearrange the letters. So let us start with bed, room, room. So the third picture is of kitchen. So here the things which we can see, these things we see in our kitchen. So kitchen is the place where we cook food for us. So we have to rearrange the letters. So the correct spelling of kitchen are kitchen, kitchen. So this is a fourth picture where you can easily see the bathtub and the wash basin. So this is the picture of bathroom. So the place where we take bath is called bathroom. The room where we take bath is called bathroom. So we have to write here bath, room, room. So let us start reading. I am Sangeeta. I live in my home. So in this image, the girl which is standing here, her name is Sangeeta. What she is saying I live in my home. मैं अपने घर पे रहती हूँ. It protects me from heat, cold and rain. Sangeeta is saying my house or my home protects me from heat, कोल्ड एंड रेन. संगीता कह रही है कि मुझे मेरा घर गर्मी से, सर्दी से और बारिश से बचाता है. इट ऑल्सो कीप्स मी सेफ फ्रॉम थीव्स एंड एनिमल्स. ओके, वो क्या बोल रही है? थीव्स मीन्स चोर और एनिमल्स मीन जानवर. मेरा घर मुझे चोरों से और एनिमल से, जानवरों से भी बचाता है. इट मेक्स मी फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी. अपने घर में रह के मैं कैसे महसूस करती हूँ? कंफर्टेबल और हैप्पी महसूस करती हूँ और हैप्पी फील करती हूँ. आई फील सेफ इन माई होम. मैं अपने घर में सेफ फील करती हूँ. सो हियर संगीता इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स अबाउट हर होम. So let us move towards the next page. So there are many kinds of houses. It means घर की भी काफ़ी सारी काइंड्स होती हैं, अलग अलग तरह के घर होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कच्चा हाउस. सो दीज हाउसेस आर मोस्टली सीन इन द विलेजेस. विलेजेस मीन्स गाँव. आप कच्चा घर कहाँ पे देख सकते हो? कच्चे घर आपको गांव में मिलते हैं. आप कच्चे घरों को गांव में आसानी से देख सकते हो. दे आर टेम्परेरी हाउसेस मेड फ्रॉम मड, स्ट्रॉ, वुड एंड स्टोन्स. जो कच्चे हाउसेस होते हैं वो टेम्परेरी हाउसेस होते हैं. टेम्परेरी हाउसेस मीन्स जो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते. कच्चा मीन्स जो चीज़ आसानी से टूट जाए. ठीक है, जो कच्चा घर होता है वो हमेशा टेम्परेरी हाउस होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो किन चीज़ों से बनता है? मड से बनता है, स्ट्रॉ से बनता है, वुड से बनता है और स्टोन से बनता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कच्चा हाउस एंड यू कैन ईजली सीन कच्चा हाउस इन द villages. The second kind of house is Pakka house. So these houses are found in towns and cities. So
आप आप पक्का हाउस कहाँ पे देख सकते हो? आप पक्का हाउस कस्बों में और शहरों में देख सकते हो। दे आर परमानेंट हाउसेस मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मटेरियल सच एज ब्रिक्स, स्टील, सीमेंट, आयरन एंड ग्लास। जो पक्का हाउसेस होते हैं वो परमानेंट हाउसेस होते हैं। परमानेंट हाउसेस जो हमेशा हमेशा अपनी जगह पे रहते हैं। वो परमानेंट हाउसेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने होते हैं। और स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन कौन सा है? ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स ईट, स्टील, सीमेंट, आयरन एंड ग्लास। सो दिस इज़ द कच्चा हाउस। वाई इट इज़ कच्चा हाउस? ये कच्चा हाउस क्यों है? और टेम्परेरी हाउसेस क्यों है? क्योंकि ये वीक मटेरियल से बना होता है। और वीक मटेरियल कौन सा है? मड, स्ट्रॉ, वुड एंड स्टोन्स। और ये कौन सा हाउस है? पक्का हाउस है, इसलिए इसको हम कौन सा हाउस भी बोल सकते हैं? परमानेंट हाउस। और परमानेंट हाउस कौन सी चीज़ों से, कौन से मटेरियल से बना होता है? स्ट्रॉन्ग मटेरियल से, लाइक bricks, steel, cement, iron and glass. So this is an image of pakka house. So third one is the bungalow. What is bungalow? A bungalow is a single storied house with a garden. ठीक है, जो बंगलो वो होता है, बंगलो वो घर होता है जिसमें एक स्टोरी हो और जिसके आसपास एक गार्डन हो, उस घर को हम क्या बोलेंगे? बंगलो। द नेक्स्ट काइंड ऑफ हाउस इज मल्टी स्टोरीड। मल्टी स्टोरीड मीन्स वो हाउस जिसकी काफ़ी सारी स्टोरीज हों। स्टोरीज मीन्स मंजिलें हों। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स एंड स्काई स्क्रैपर्स आर बिल्ट इन बिग सिटीज़। जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ स्काई स्क्रैपर्स मीन्स सेम मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जो बहुत ऊंची बिल्डिंग हो, वो कहाँ पे बनी होती हैं? बिग सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में बनी होती हैं। सम हाउसेस आर बिल्ट टुगेदर इन वन बिल्डिंग्स। ओके, जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं उसमें एक ही बिल्डिंग में काफ़ी सारे घर बने होते हैं और दे आर कॉल्ड फ्लैट्स। उन घरों को हम क्या बोलते हैं? फ्लैट्स। मैनी फैमिलीज लिव देयर। सो उन फ्लैट्स में बहुत सारे परिवार एक साथ रह सकते हैं। वन कैन फाइंड सच हाउसेस इन सिटी लाइक दिल्ली। हमें मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स कहाँ पे दिखेंगी, कहाँ पे मिलेंगी? बड़े बड़े शहरों में। उसकी एग्जाम्पल, शहर की एग्जाम्पल दी हुई है दिल्ली में। द नेक्स्ट वन इज, डू यू नो बुर्ज खलीफा इन दुबई इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि दुनिया में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? द नेम ऑफ द बिल्डिंग इज बुर्ज खलीफा। ओके, और वो बिल्डिंग कहाँ पे है? दुबई में। इट इज़ मोर देन 10 टाइम्स द हाइट ऑफ कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार भी एक मोनूमेंट है, उससे वो कितनी हाइट में बड़ी है? 10 टाइम्स। So now students, tell me, have you seen multi-storied building? And your answer should be yes. क्या आपने कभी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग देखी है? हाँ, कैसे देखिए, जो हमारी स्कूल की बिल्डिंग है वो भी कौन सी बिल्डिंग है? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी मंजिलें और स्टोरीज बनी हुई हैं। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ अदर काइंड्स ऑफ हाउसेस। इन जो 4-5 काइंड्स हमने की हैं, लाइक कच्चा हाउस, पक्का हाउस, बंगलो एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के अलावा भी अलग अलग प्रकार के हाउसेस होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पीपल हु लिव इन माउंटेन्स एंड हिल्स बिल्ड हाउसेस ऑफ वुड एंड टाइल्स। लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, वो अपने हाउसेस किससे बनाते हैं? वुड के साथ। वुड मीन्स लकड़ी के साथ और टाइल्स के साथ। These houses have sloping roofs to help the rain and snow to slide off as in Nainital and Shimla. So see, these types of houses are built in mountains and hills. So these houses have sloping roofs. ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ऐसे हाउसेस माउंटेन्स में बने होते हैं और इन हाउसेस की जो रूफ, जो छत होती है ना, वो स्लोपिंग होती है, जैसे एक सेंटर में से एक तरफ झुकी हुई होती है। क्यों होती है? ताकि जब भी वहाँ पे माउंटेन में बारिश हो, जब कभी भी स्नोफॉल हो, जो भी बारिश हो, जहाँ स्नोफॉल का वाटर हो, वो आसानी से नीचे आ जाए। ठीक है, कभी भी रूफ के ऊपर कलेक्ट ना हो। ठीक है, आप ऐसे हाउसेस कहाँ पे देख सकते हो? नैनीताल में और शिमला में।
In Assam and Arunachal Pradesh, people make houses on wooden poles called stilts. So जो असम और अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो अपना घर कैसे बनाते हैं, वो अपना घर इन छोटे छोटे लकड़ी के पोल्स पे, पोल्स में आप बोल सकते हो डंडों पे बनाते हैं। पहले वो डंडे खड़े करते हैं और देखो ज़मीन में उन्होंने ये डंडे खड़े किए हुए हैं, उसके ऊपर इतनी ऊंचाई पे वो अपना घर बनाते हैं। ठीक है, देखो नीचे से इतने बड़े पोल्स हमें दिख रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, उन्होंने अपना घर थोड़ी ऊंचाई पे बनाया हुआ है। ठीक है, और इन वुडन पोल्स को वो क्या बोलते हैं, स्टिल्ट्स। क्या बोलते हैं, स्टिल्ट्स। These houses do not let rain water and insects to enter their homes. वो अपने घर इतनी ऊंचाई पे इसलिए बनाते हैं कि जब भी कभी बारिश और बारिश का पानी कलेक्ट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, वो पानी उनके घर में एंटर ना कर सके क्योंकि उनका घर पहले ही ऊंचाई पे बना हुआ है। ठीक है, और ऐसे घर बनाने से उनका घर बारिश के पानी से और इंसेक्ट से बचा रहता है। The third one is, in very cold places such as Greenland, houses are made from ice blocks. Such houses are called igloos. Okay, जहाँ पे वो प्लेसेस जहाँ पे बहुत ठंड होती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी स्नो है, लाइक ग्रीनलैंड। ठीक है, एक प्लेस का नाम है ग्रीनलैंड, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, वो कोल्ड प्लेस है। वहाँ पे हाउसेस कैसे बनते हैं, वहाँ पे हाउसेस बनते हैं आइस ब्लॉक के साथ, आइस के बड़े बड़े पीसेस के साथ। ठीक है, दीज आर द पीसेस ऑफ आइस। सच हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज। ओके, दिस काइंड ऑफ हाउस इज कॉल्ड इग्लूज। जो हाउसेस आइस के ब्लॉक के साथ और आइस के पीसेस से बनते हैं उन हाउसेस को हम इग्लूज बोलते हैं। द थर्ड वन इज the fourth one is, in Kashmir people live in houses that float on water. These houses are called house boats. So कश्मीर में वहाँ के लोग जो अपना घर है वो किस पे बनाते हैं, जो उनका घर होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। कैसे करता है, दीज हाउसेस आर कॉल्ड हाउस बोट। मीन्स एक बोट होती है, देखो दिस इज अ बोट, बोट के ऊपर उनका घर होता है। सो इस ऐसे घरों को हम क्या बोलते हैं, हाउस बोट्स। नेक्स्ट वन इज, सम पीपल हैव नो परमानेंट हाउस। ओके, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनका कोई भी परमानेंट हाउस नहीं होता। दे आर कॉल्ड नोमैड्स। सो जिन लोगों का कोई भी परमानेंट हाउस नहीं होगा हम उनको क्या बोलते हैं, नोमैड्स। दे लिव इन टेम्परेरी हाउस सच एज टेंट्स एंड कैरावंस। सो ये लोग एक टेम्परेरी हाउस में रहते हैं और उनके हाउस को हम क्या बोलेंगे, टेंट और कैरावंस। टेंट्स आर मेड फ्रॉम कैनवस क्लोथ। टेंट किस क्लोथ का, किस कपड़े का बना होता है, कैनवस क्लोथ का। और कैरावंस इज कॉल्ड हाउस ऑन व्हील्स। कैरावंस क्या होता है, वो वाला घर जो पहियों के ऊपर, जो व्हील्स के ऊपर बना होता है। देखो सी दिस इज द व्हील्स एंड हियर हाउस इज बिल्ट। दीज पीपल कैन लोकेट देयर हाउस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये घर है जहाँ पे व्हील्स के ऊपर एक घर बना हुआ है और वो लोग अपने घर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इसलिए हम इस घर को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑन व्हील्स और कैरावंस। बच्चों आप सभी ने देखे होंगे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कहीं भी आके रहते हैं थोड़ी देर के बाद, और आपने ऐसे घर भी देखे होंगे उनके पास जो थोड़ी देर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए एक जगह पे रहते हैं और उसके बाद अपने घर को वहाँ से लेके दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। So now move towards the next page. People who help us in building our house. So now we will read about the people who help us in building our house. अब हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हमारा घर बनाने में हेल्प करते हैं। There are many people who help us in building our house. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम हेल्प लेते हैं अपना घर बनाने के लिए। An architect draws the design for a house. The first person who help us is architect. आर्किटेक्ट वो पर्सन होता है जो हमारे घर का डिज़ाइन तैयार करता है। ठीक है, जो हमारे घर का डिज़ाइन बना के देता है पेज के ऊपर कि ऐसे आपका घर डिज़ाइन होगा, ऐसे आपका घर बनेगा। द सेकेंड वन इज, ए मैसन यूसेस ब्रिक्स एंड सीमेंट टू बिल्ड द
वॉल्स। उसके बाद कौन आता है? मैसन। मैसन को, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो मिस्त्री, ठीक है, जो ब्रिक्स, ईट और सीमेंट के साथ वॉल्स, वॉल्स मीन्स दीवारें बनाता है। द थर्ड वन इज एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड वायर्स इन द हाउस। उसके बाद हम किसकी हेल्प लेते हैं? इलेक्ट्रीशियंस की। वो क्या करते हैं? वो हमारे घर में वायरिंग करते हैं, वायर तार के साथ वायरिंग करते हैं और इलेक्ट्रिक पॉइंट्स बनाते हैं, जिसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके अपने घर में लाइट्स और फैंस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ ए प्लम्बर फिट्स एंड रिपेयर्स टैप्स एंड वाटर पाइप्स। उसके बाद हम किसकी हेल्प लेते हैं? प्लम्बर की। प्लम्बर क्या करता है? वो हमारे घर में टैप्स को और वाटर पाइप्स को फिट करता है। अगर कोई ख़राब हो तो उसकी क्या करता है? रिपेयर करता है। द नेक्स्ट वन इज़ ए पेंटर पेंट्स द हाउस। ठीक है, आप सभी को पता है पेंटर क्या करता है? वो हमारे घर को पेंट करके इसको ब्यूटीफुल बनाता है। नेक्स्ट वन इज़ एन आइडियल होम। आइडियल मीन्स परफेक्ट होम। कौन सा होम आइडियल होगा, या कौन सा होम है जो परफेक्ट होगा? एन आइडियल होम इज़ वन विच हैज़ मैनी डोर्स एंड विंडोज दैट अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू एंटर। हम किस होम को आइडियल बोलेंगे, जब परफेक्ट होम बोलेंगे जिस होम में काफ़ी सारे डोर्स, दरवाजे और विंडोज़ होंगी, जिसकी हेल्प से फ्रेश एयर और सनलाइट आ सकते हैं घर में। द फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी। जो फ्रेश एयर होगी वो क्या करेगी? वो हम सभी को हेल्दी रखेगी। द सन्स रेज किल्स द जर्म्स इनसाइड द हाउस। और अगर हमारे घर में सनलाइट आएगी तो वो क्या करेगी? हमारे घर में जो भी बीमारी फैलाने वाले जर्म्स हैं उन सभी को क्या कर देगी? किल कर देगी, मार देगी। द वायर मैश ऑन द विंडोज प्रिवेंट्स फ्लाइज एंड मस्कीटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। और अगर हमारे घर की विंडोज़ पे वायर मैश लगा होगा, वायर मैश मीन्स जाली लगी होगी, और वो क्या करेगी? वो हाउस फ्लाइज को, मस्कीटोज़ को हमारे घर में एंटर करने से रोकेगी। अगर हमारे घर में ये सारी चीज़ें हैं तो हमारा होम क्या है? आइडियल होम। कौन सा आइडियल होम है? एक आइडियल होम के पास काफ़ी सारे डोर्स और विंडोज़ होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? अगर हमारे घर में काफ़ी सारे डोर्स और विंडोज़ होंगे तो हमारे घर में फ्रेश एयर और सनलाइट आएगी। अगर फ्रेश एयर आएगी तो हम सभी हेल्दी रहेंगे, और सनलाइट आने से, सनलाइट आके हमारे घर में जो भी जर्म्स होंगे उनको किल कर देगी। अगर हमारे घर की विंडोज़ पे वायर मैश लगा होगा तो वो फ्लाइज को और मस्कीटो को हमारे घर में एंटर नहीं करने देगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेकोरेशन ऑफ हाउस। हम अपने हाउस को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे सुंदर बना सकते हैं? डेकोरेटिंग योर होम गिव्स इट ए वेलकमिंग लुक। अगर हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे तो हमारे घर को कौन सी लुक मिलती है? वेलकमिंग लुक मिलती है। इट मेक्स अस फील कंफर्टेबल एंड वार्म। अगर हमारा घर अच्छे से डेकोरेट हुआ होगा, अच्छे से सजा होगा, तो हम कैसा फील करते हैं? कंफर्टेबल और वार्म फील करते हैं। वी मस्ट कीप अवर होम नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वी मस्ट थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन। ओके, हम सभी को अपने घर का वेस्ट हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। वी मस्ट रिमेंबर टू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन वी लीव द रूम। हम सभी को ये हमेशा याद रखना चाहिए, ये सभी हमेशा रूल को फॉलो करना चाहिए कि जब भी हम रूम से बाहर आएँ तो हमें उस रूम की लाइट्स और फैन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। वी शुड कीप अवर शूज़ एंड स्लीपर्स इन द शू रैक। हम सभी को अपने शूज़ और स्लीपर्स को हमेशा शू रैक में रखना चाहिए। वी मस्ट कीप अवर टॉयज़ एंड बुक्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। हम सभी को अपने टॉयज़ और बुक्स को यूज़ करने के बाद उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। वी मस्ट मेक अवर बेड एवरी डे। हम सभी को अपने बेड को हर रोज़ साफ़ करना चाहिए।
We must grow plants near our house and keep its surrounding clean. हमें अपने घर के पास प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए और अपनी सराउंडिंग्स को मीन्स अपने घर की आसपास की जगह को भी क्लीन रखना चाहिए. सो बच्चा, दीज आर द स्मॉल एंड सिंपल स्टेप्स बाय फॉलोइंग दैट वी कैन डेकोरेट हाउस. ओके, व्हाट आर द सिंपल स्टेप? हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें हमेशा वेस्ट को डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, हमें फैंस और लाइट्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब भी हम उसे यूज़ नहीं कर रहे होते. हमें अपने शूज़ को हमेशा शू रैक में रखना चाहिए, टॉयज़ एंड बुक्स को उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, अपने बेड को हर रोज़ साफ़ करना चाहिए और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करना चाहिए. Now the next is quickly once more. Now in this part we will quickly revise all these things which we have read in the chapter. A house protect us from heat, cold, rain, thieves and animals. जो house होता है वो हमें heat, cold, rain, thieves और animals से बचाता है. There are many types of houses. कच्चा house, पक्का house, bungalow, multi-storied flats, etc. A house made of bricks, cement and glass is called a pakka house. People who have no home are called nomads. Many people help us to build our house. So हमारा घर हमें हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स और एनिमल से बचाता है. और हाउस की भी डिफरेंट काइंड्स और टाइप्स हैं, जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, बंगलो, मल्टी स्टोरेड, फ्लैट और बहुत सारे और. पक्का हाउस कौन सा होता है? जो ब्रिक्स, सीमेंट और ग्लास से बना होता है. वो लोग जिनके पास अपना घर नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं? नोमैड्स. और बहुत सारे लोग हमें हमारा घर बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है. और उनके नाम हमने इस चैप्टर में रीड कर लिए, लाइक आर्किटेक्ट, मैसन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एंड पेंटर. Students, with this we have completed our chapter. I hope this video help you to understand it better. Thank you. Take care.